Hi everyone, welcome back. I know a lot of aspirants amongst us are making a serious effort now to crack SEBI Grade A exam because that is their dream job. But in spite of making all these efforts, strategies, planning, replanning, is there anything being left? Is there any mistake being done which can actually be an impediment for you to get your dream job? So उसी से related we are going to discuss 5 deadly mistakes which I think a lot of aspirants make, even the serious ones. वो हमें नहीं करनी और वही मैं डिस्कस करने वाला हूं. तो इनको ध्यान से सुनिए. मे बी lot of mistakes you already know and you're not making, that's really good. But even if you're making one of these mistakes, you need to correct your path because every single second that is you're spending in your preparation counts. You need not doing something which is actually resulted it being a wasted one. Every single second. So इन 5 mistakes के बारे में बात करेंगे. इनको note down कीजिए, especially if you are not aware of any of these. The first one itself, which is the biggest mistake, is not deciding and therefore not committing. हम में से बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि यार पता नहीं नोटिफिकेशन आएगा या नहीं. That can be something which is questionable. और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि यार क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा. तो पहले क्वेश्चन का तो मेरे पास आंसर नहीं है, बट दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं यही कहूंगा दैट एवरेज इज नॉट आवर कैपेबिलिटी. हमें लगता है हमारी कैपेबिलिटी एवरेज है, बट एवरेज इज नॉट आवर कैपेबिलिटी, रेदर एवरेज इज आवर एफर्ट. एंड टिल द पॉइंट वी डू नॉट डिसाइड एंड डू नॉट कमिट, आवर एफर्ट वुड ऑलवेज बी एवरेज. एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स फ्रॉम those average efforts? तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है. इफ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन एनीथिंग इन लाइफ, जस्ट सी व्हाट कैन बी द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डिसीजन. आपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी, आप अपना 100% दे रहे हो, नोटिफिकेशन नहीं आया या आपका नहीं हुआ. व्हाट इज द वर्स्ट दैट विल हैपन टू यू? इफ यू एक्सेप्ट दैट वर्स्ट, I think you will be able to decide easily and then you will be able to give your 120%. That is what is required. वो सेबी हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये लॉजिक लगा के देखो. डिसाइड करो देना या नहीं देना. That's it. That is the first thing. बाकी सारी चीजें उसके बाद शुरू होती. और एक बार डिसीजन ले लिया तो कमिटमेंट अपने आप आएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं. और एक बार कमिटमेंट आ गया तो चीजें बहुत स्मूथ चलेंगी. The second thing is hoarding lot of study material. Again, it's not about that we are not ready to study, but the problem is that we are not able to study or we are not willing to study in a structured manner. हम जहां से भी कुछ भी मिलता है, YouTube, WhatsApp, Telegram, we just keep downloading that, making folders in our computers and saving it, assuming that I'll read it one day without any understanding that where does all this which I am downloading fits in, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से चैप्टर का है, किस सीक्वेंस में पढ़ना है, what I have downloaded is even updated or not. We are not cared about that. What we are cared about is कि ये फ्री में मिल गया, इसको रख लो, कभी काम आएगा. ऐसे नहीं होता है. You're just wasting your time. उससे अच्छे आप कोई एक चैप्टर पढ़ लो, चाहे बाकी सब कुछ मटेरियल नहीं डाउनलोड कर पा रहे, that's okay. You're just wasting precious hours, precious days of your life, whereas I am saying every single second counts. तो ये छोड़ दो. ये सोशल मीडिया से नहीं सिलेक्शन होगा. Even if you want to do self preparation, again I am not against self preparation. कुछ बुक्स ले आओ यार, एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस में स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे, देयर विल बी ऑथेंटिसिटी एंड यू विल बी एबल टू गेज कहां पे हो, कितने चैप्टर हो गए हैं. फॉर दैट यू कैन वॉच दिस वीडियो, सेबी ग्रेड ए 2023 बेस्ट बुक्स फेज 1 एंड फेज 2. ये आप जरूर कर लेना. यहां से आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी. बुक्स की वीडियो देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कहां कहां से क्या पढ़ना है. एंड दिस नीड ऑफ होर्डिंग द स्टडी मटेरियल विल ऑलमोस्ट वैनिश. कोई जरूरत नहीं है यार, कुछ चाहिए भी तो एमसीक्यूज ले लो इधर उधर से, बट नॉट द स्टडी मटेरियल. द थर्ड वन इज अनइवन एफर्ट्स. ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग प्रोपोर्शनेट एफर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द एरियाज, right? The weightage of areas, respect to the weightage of areas that is there in the exam. I'll give you an example. QRE, ये आपका पेपर 1 अगर आप देखेंगे फेज 1 में, it's not there. उसमें QRE is
इज जस्ट क्वालिफाइंग, मतलब ठीक है ना, कि उसमें आपको 1/3 मार्क्स लेने होते हैं। यहाँ पे ये पैटर्न नहीं है, ये फेज 2 का पैटर्न है। फेज 1 पैटर्न में पेपर 1 QRE एंड GA इज समथिंग विच इज जस्ट क्वालिफाइंग। यू जस्ट हैव टू टेक 30%, not 1/3 even. You have to take score minimum 30% in that paper. और अगर आपका QRE वीक भी है, आप उस पर इतना टाइम लगा रहे हैं जस्ट टू स्कोर दैट 30%, देन आई थिंक यू डू नॉट इवन डिजर्व टू गिव दिस एग्जाम। सिलेक्शन तो भूल जाओ, कि अगर आपको QRE से इतना डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूं और 5 घंटे मुझे QRE और GA पे लगाने हैं, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय प्रिपेयरिंग फॉर SEBI. दिस एग्जाम इज नॉट फॉर यू, बिकॉज अगर आप एक 30% क्वालिफाइंग सेक्शन के लिए भी आधा टाइम लगाएंगे, यू आर नॉट इन द राइट टेरिटरी माय फ्रेंड, अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो हमें QRE जैसे एरियाज पे मिनिमम टाइम लगाना है। हो जाएगा यार, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, 1-2 घंटे पढ़ो डेली, आराम से QRE निकलता है। एफर्ट लगाना चाहिए पेपर 2 पे, जो फेज 1 में भी है, फेज 2 में भी है। दैट इज द कोर एक्चुअली, दैट इज द मेन एरिया where you need to score mark, which will actually define whether you will get selected or not. But paper 2 जो कि phase 1 phase 2 में है, इसके साथ साथ phase 2 में descriptive English भी है। How many people actually prepare for it? ये 1/3 वेटेज भी लगाऊं तब भी लाइक ठीक है, 100 में से 33% वेटेज इसका है और 66% वेटेज पेपर 2 के। बट इवन फॉर दिस 30%, हाउ मेनी पीपल आर प्रिपेयरिंग? दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2। जैसे उसमें तो 100 में से 100 नंबर आएंगे। डोंट डू दैट। अगर उसमें 100 घंटे लगा रहे हो, 1/3 टाइम 33, 30, 40 आवर्स इसमें भी लगाओ। दैट इज ऑल। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड बी डिवोटिंग इक्वल टाइम टू ऑल दीज सब्जेक्ट्स, बट इस पे पेपर 2 का जितना टाइम है 1/3 इस पे लगाओ। इसमें नंबर आएंगे, अच्छे आएंगे, एंड देन ओनली यू विल गेट सिलेक्टेड, ट्रस्ट मी। अंडर प्रिपरेशन और ओवर प्रिपरेशन, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कई लोग बहुत अंडर प्रिपेयर करते हैं, दे लीव द कंपोनेंट्स ऑल टुगेदर, के अकाउंट्स नहीं पढ़ के जाएंगे, सर समझ नहीं आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट से वी विल ट्राई टू क्लियर द एग्जाम। नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। अगर आप पूरा का पूरा कंपोनेंट छोड़ जाएंगे या पूरे के पूरे 10 चैप्टर छोड़ जाएंगे, फेज 2 नहीं होगा, फेज 1 हो जाएगा। बिकॉज पेपर 2 इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इतने कंपोनेंट्स, इतने चैप्टर्स में छोड़ जाऊंगा। Maybe within certain chapters you can do the most important part, or you can cover the 100 most MCQs. ठीक है, वो फिर भी जायज है, but do not leave the entire set of chapters और entire set of components, वो नहीं होगा। तो बिल्कुल भी इस तरह से अंडर प्रिपेयर मत कीजिए और ओवर प्रिपेयर भी मत कीजिए। काफी लोग स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स या फिर कॉस्टिंग, इनमें बहुत ज्यादा घुस जाते हैं। मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल सोर्सेज, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। They are asking you basic questions, trust me, basic questions. If you have good understanding, एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे, चीजें समझ आएंगी, बेसिक क्वेश्चंस होंगे। और न्यूमेरिकल भी बेसिक ही हैं। एक दो मुश्किल आ भी गए यार, दैट्स ओके। आपको 100 में से 100 नहीं लेने हैं। दिस इज नॉट योर टारगेट, दिस इज नॉट योर टारगेट। अ स्कोर ऑफ 65 out of 100 right will be more than sufficient, I would say, if you do good in interview to help you clear phase 2. तो ज्यादा ओवर प्रिपेयर भी मत करो, उतना होगा नहीं एक्चुअली। आइदर यू शुड स्टार्ट वेरी अर्ली, बट अगर आप ऑलरेडी लेट हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, देन डू नॉट एम टू ओवर प्रिपेयर। दैट विल जस्ट किल योर एफिशिएंसी एंड दैट विल जस्ट किल योर मोमेंटम, दैट विल जस्ट किल योर मोटिवेशन इन द एंड। और जो लास्ट चीज मैं बताना चाह रहा हूं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पेपर लाइक सेबी, जहां पे आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 40 मिनट दिए जाते हैं, right? 50 questions in 40 minutes, and there are numericals, there are conceptual questions, some of them might be tricky. It's a very it's a very dangerous zone, I would be, for somebody to be in. मतलब आपने 5 मिनट वेस्ट किए and you're gone, I mean then you're out of the race. Every single second count in that paper. तो सिर्फ IQ ये जरूरी है, जितना ज्यादा पढ़ोगे, बेसिक्स को समझोगे, यू विल हैव बेटर चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। तो नॉलेज IQ जरूरी है, बट एट द सेम टाइम दिस नॉलेज IQ जितना भी है, ये आपको सारा एग्जाम में जाके प्रूव करना है 40 मिनट्स में, दैट आई एम बेटर देन द बेस्ट। हाउ डू यू डू दैट? वहां पे आपसे कोई आके चेक नहीं करेगा आपकी क्या नॉलेज है, बस इन 40 मिनट्स में यू विल हैव टू गिव दैट बेस्ट। और इन 40 मिनट्स में ही दिक्कत आती है दैट वी स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी हो रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है,
गेस वर्क नहीं हो रहा है, इंट्यूशन नहीं चल रहा है, मतलब एकदम दिमाग बंद हो जाता है। एंड दीज आर दी थिंग्स यू रियली नीड टू वर्क ऑन। और ये चीजें आएंगी इमोशनल क्वेश्चन डेवलप करके। इमोशनल क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू डेवलप दैट इज गिव लॉट ऑफ मॉक्स, लाइक यू बिकम इंडिफरेंट टू लाइक एनी मॉक यू आर गिविंग एट द एंड ऑफ द डे। कितने मॉक्स दे दो, क्या ठीक है मॉक है मेरे लिए तो नॉर्मल है, इट्स जस्ट लाइक आई एम ईटिंग माय सब्जी एंड रोटी। ये बहुत जरूरी है, ट्रस्ट मी। मतलब मैं तो ये बोलता हूं, इट्स अ गेम ऑफ 40 मिनट्स। यू माइट स्टडी 40 आवर्स, यू माइट स्टडी 400 आवर्स, यू माइट स्टडी 4000 आवर्स, but at the end of the day, for everyone, it's a game of 40 minutes where you need to give your best. And to give your best, you need to not only exhibit knowledge, you need to also exhibit your quotient in emotions, managing emotions, anxiety, time management, intuition, guesswork, all that. तो ये सारी चीजें आप कीजिए, ये 5 मिस्टेक्स को अच्छे से समझिए, तभी जाकर यू विल बी एन एस्पिरेंट हु विल एन एज ओवर अदर्स। सबके बराबर चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं किस्मत पे छोड़ रहे हो। वी हैव टू गेट अहेड ऑफ अदर्स, वी हैव टू बीट अदर्स बाय अ बिग मार्जिन, ताकि हम रेस में बिल्कुल, मतलब समझ रहे हैं आप, उसैन बोल्ट बनना है हमें, ठीक है। एंड दिस इज द गाइड बुक इफ यू आर स्टार्टिंग फॉर सेबी ग्रेड ए। This is the guidebook you should be downloading right away. The link to download this guidebook is given in the description of this video. आज इसको डाउनलोड करो। सेबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सेबी का डिटेल्ड सिलेबस मिलेगा इस गाइडबुक में, जो नोटिफिकेशन में भी नहीं मिलेगा आपको क्वांट रीजनिंग का। फिर सेबी की डिटेल्ड बुक लिस्ट और रिसोर्सेज मिलेगी सिर्फ इसी गाइडबुक में, विच इज नॉट इवन गिवन इन द नोटिफिकेशन। तो आज ही डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री है। द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। So that's it from my side. Thank you. I hope your SEBI preparation is doing good. We are with you. I wish you best of luck. Bye-bye. Have a nice day.